Good morning, students. In our last class, we have seen the overview of the chapter Optical Instrument. Now, from today, we are going to start studying all the instruments that can gives us the image of the object that are either very small or very large, right? So, first of all, we will start with studying the microscope. और माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, सो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं टू गेट द मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपको पता है माइक्रोस्कोप का यूज हम क्यों करते हैं? बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, राइट? सो सिंपल माइक्रोस्कोप basically in simple microscope which we have a convex lens. This is the principal axis, this is the optical center, right? Obviously हम बात कर रहे हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज है वो हमको एनलार्ज्ड चाहिए, राइट? तो हमको एनलार्ज्ड इमेज कब मिलती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होता है. In that case we get the enlarged image of the object, right? तो हमने यहाँ F1 और O के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया. Now what will happen? A ray will incident from the object on the lens. After refraction, it will pass through F2. Another ray will incident through optical center and it will go without any deviation like this, right? Now if we extend both the rays, they will never intersect each other, right? Because they are diverging from each other. But if we extend them back like this, so here at this point we will get our final image, which is virtual and direct, right? So in this way we can see the enlarged image of an object when it is kept in front of a simple convex lens, and this simple convex lens is basically a simple microscope, right? Now students, we know that the angle sustained by the object at the optical center is denoted by alpha, and the angle sustained by the image on the optical center is beta, right? और यहां से अगर मैं अगर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई, और यहां से अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं तो दिस ए डबल डैश बी डैश विल बी इक्वल टू अवर ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी, राइट? और यहां से अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पर एक एंगल इमेजिन करूं तो दैट एंगल बीटा will be the angle that is suspended by the image at the optical center, right? So this angle AOB is the alpha, that is the angle sustained by the object, and this A double dash O B dash, that is beta, is the angle that is sustained by the image at the optical center, right? I hope the diagram is clear to all of you. Now students, we have to find out the magnifying power of simple microscope. We know that magnifying power का फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल सस्टेंडेड बाय इमेज अपॉन में विजुअल एंगल subtended by an object kept at D. What is D here? D is the least distance of distinct vision. इसका मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है? Least distance of distinct vision, that is D पर, right? We know that मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू विजुअल एंगल सस्टेंडेड बाय द इमेज अपॉन में विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. ओके,
Now, um, since this alpha and beta are so small, so we assume that this alpha is nearly equal to 10 alpha and this beta is nearly equal to 10 beta. Now from here, what do we get? M is equal to 10 beta upon में 10 alpha. Now students, we are talking about 10 beta and 10 alpha in these two triangles, right? And if we are talking about these two triangles, then on solving it, what do we get? On solving, we will get M is equal to D by U. This is the formula for magnifying power of simple microscope. Okay, we need not to solve the whole thing because it is a geometry part, right? So we can just write the expression here that M is equal to D upon U is the magnifying power of simple microscope. Okay, so whenever we derive an equation, an expression for the magnifying power of any of the optical instrument, then what do we have to do? We have to find it for two cases. Okay, हमको इसको दो केसेस के लिए निकालना पड़ेगा. First one is when the image is at least distance of distinct vision, and the second one is when the image is at infinity. Okay, इसमें हमको दो केसेस डिस्कस करने हैं. पहला, जब हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, एक तब, और दूसरा जब हमारी इमेज इंफिनिटी पर बने तब. हम जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे सब में हमको इन्हीं दो केसेस के लिए सॉल्व करना है. ओके, सो द केस वन इज when the image is at least distance of distinct vision. जब हमारी इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, so students, by lens formula we know that 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, right? Now as we are talking about कि जो हमारी इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, और अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है तो ये जो v है वो कितना हो जाएगा, v is equal to d, right? एंड बाय साइन कन्वेंशन अभी हमने देखा कि जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड बन रही है. इसका मतलब यहाँ पे d के आगे हमको माइनस लगाना पड़ेगा बाय साइन कन्वेंशन. सिमिलरली ये जो u है वो क्या हो जाएगा, माइनस u. क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड जितनी भी चीजें ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ होती हैं बाय साइन कन्वेंशन वी हैव टू टेक देम नेगेटिव, राइट? नाउ ऑन पुटिंग बोथ दीज वैल्यूज in this expression for that is the lens formula, what do we get from here? 1 by f is equal to 1 by v की जगह आ जाएगा माइनस d माइनस 1 by u की जगह आ जाएगा माइनस u, right? Now what do we get? Now this minus minus would become minus minus plus by ue, right? Now what do we do? हम इस पूरी इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? d बाय f इज इक्वल टू माइनस d बाय d प्लस d बाय u. d से d कैंसल, सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? d बाय f इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस d बाय u, राइट? और अगर मैं यहाँ से d बाय u की वैल्यू निकालूं तो आई विल गेट d बाय u इज इक्वल टू 1 plus d by f, right? Now जो हमने m के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, we know that m is equal to d by u. So on putting the value of d by u from here in this equation, so what do we get? m is equal to 1 plus d by f. This is the expression for the magnifying power of simple microscope when the image is formed at least distance of distinct vision, that is capital D, right? So m is equal to 1 plus d by
f is the expression, right? Now this was the first case. Now if we consider the second case, then in second case our image should be formed at infinity. जब हमारी इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होगी, उस केस में इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं. When the image is formed at infinity, जब हमारी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी तब क्या होगा, that we are going to see now. So students, we know that when the image is formed at infinity, then obviously ये जो v होगा वो क्या हो जाएगा, infinite, right? When the image is formed at infinity, then v is equal to infinite, and we know that image infinity पे कब बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो. और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, f, राइट? जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, जब हमारी इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो स्मॉल u की वैल्यू आ जाएगी f. हियर वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप दैट इज d by u, और u की इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, सो m is equal to d by f is the formula for magnifying power of simple microscope when the image is formed at infinity. So in this way we can find out the expression for the magnifying power when the image is at least a distance of distinct vision, that is capital D, and when the image is formed at infinity, right? Now we will proceed to the second topic, that is नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ कमियां रह गई थी जिनको हमको रिमूव करने के लिए या उनको ओवरकम करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ा, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट? नाउ एज इट्स नेम सजेस्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज. सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास केवल एक लेंस होता था, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेस यूज करते हैं. ओके, वन लेंस इज टुवर्ड द ऑब्जेक्ट while the second lens is toward the image, right? या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, उसमें एक जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो दूसरा लेंस होता है वो हमारी आंखों के पास होता है, मतलब जहां से हम देख रहे हैं वहां होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, eyepiece lens. So the object the lens which is toward the object is called as objective lens, and the lens which is toward the eyes या the observer is called as eyepiece lens. यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है that should be always smaller than the eyepiece lens. जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमेशा छोटा होना चाहिए eyepiece लेंस से. Now what will happen, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सो a ray will incident parallel to the principal axis. After refraction it will pass through focus of objective lens from this point, right? इसको हमने नाम दे दिया फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट? तो इसलिए हमने इसको लिख दिया O. इस ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को हमने मान लिया O, और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर को हम डिनोट कर रहे हैं E से, राइट? ऑप्टिकल सेंटर एक दूसरी रे इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी लाइक दिस, and here at this point we will get the two rays meet each other, right? So the distance of object from the optical center is called as u, और since हम यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको लिख दिया UO. okay, let AB be the object and A dash B dash be the
image. I hope the diagram is clear to all of you till now. Students, you can make the diagram in your copies along with me, right? So that you will be able to understand that how does the rays are going from one point to another. Okay. Now, what will happen? This will act as an object for the eyepiece lens. ये जो image बनी है A dash B dash, वो as an object behave करेगी इस eyepiece lens के लिए. अब क्या होगा? A ray will incident parallel to the principal axis. After refraction, it will pass through focus of the eyepiece lens, right? इसको हमने लिख दिया FE, that is the focus of eyepiece lens. Now another ray will incident through eyepiece lens like this. दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी कुछ इस तरह से. नाउ अगर हम इन दोनों रेस को यहाँ कितना भी एक्सटेंड कर लें तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट. बट अगर हम इनको एक्सटेंड बैक करते हैं तो यहाँ किसी पॉइंट पर हमको हमारी फाइनल इमेज मिल जाएगी. एंड लेट द नेम ऑफ द फाइनल इमेज बी A डबल डैश B डबल डैश, राइट. सो इन दिस वे हमारा ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा था और उसकी फाइनल इमेज हमको कितनी बड़ी मिल गई? A डबल डैश B डबल डैश, राइट. तो इस तरीके से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है जिसमें दो लेंस की हेल्प से हमको एक छोटे से ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज मिलती है, राइट. अच्छा, अब ये जो है A डैश B डैश वो एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है फॉर दिस आईपीस लेंस, तो इसकी सेंटर से दूरी हो जाएगी UE. सिमिलरली ये जो फाइनल इमेज है A डबल डैश B डबल डैश वो इस आईपीस से उसकी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी VE, राइट. बिकॉज वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज from the optical center is denoted by VE, right. So I hope the diagram is clear to all of you. You can make the diagram in your copy also along with me, so that it will be easier for you to analyze the rays that from where they are coming and to where they are going. Okay. Now what do we have to do? Now there is one more thing. The angle suspended by the object at the optical center is alpha, and the angle sustained by the final image on the optical center, that is we are talking about this angle, so this angle is beta. वो एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे उसको हम बोलेंगे अल्फा, और वो एंगल जो इमेज बना रही है ऑप्टिकल सेंटर पे उसको हम बोलेंगे बीटा. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the magnifying power of compound microscope. For this we know that the formula for magnifying power is equal to angle sustained by an object अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा बाय एन इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट kept at least a distance of distinct vision, that is capital D, right. इसका मतलब m is equal to बीटा अपॉन अल्फा. हमको पता है जो इमेज फाइनल इमेज ने जो एंगल सस्पेंड किया था दैट वाज बीटा, और ऑब्जेक्ट ने जो एंगल सस्पेंड किया वो अल्फा. नाउ सिंस दिस अल्फा एंड बीटा आर सो स्मॉल, so we know that alpha is nearly equal to 10 alpha and beta is nearly equal to 10 beta. So from here what do we get? M is equal to 10 beta upon में 10 alpha. Okay. Now students, you have to refer the diagram in your copies for the further steps. Okay. आपको आगे की स्टेप समझने के लिए अपनी कॉपी में डायग्राम को देखना पड़ेगा. From here we have to apply the tan theta in the triangle. जिस ट्राइंगल में
आपका बीटा एंगल बन रहा है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए डबल डैश ई बी डबल डैश, राइट? वो एंगल जो फाइनल इमेज सस्पेंड कर रही है आईपीस लेंस पे, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ए डबल डैश ई बी डबल डैश टेन बीटा। वहां पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेन अल्फा दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए ओ बी, राइट? हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए ओ बी की। तो ट्राइंगल ए ओ बी में टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा ओ बी, राइट? यू कैन सी दिस इन द डायग्राम्स in your copy, okay? AB is the height of the object और OB मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे? U से। और यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, इसलिए हम इसको U नहीं लिखते हुए क्या लिख देंगे? D, and as per sign convention we have to write minus D here, right? सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश में, ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश में अगर हम बात करें तो टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, राइट? अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश की, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। A dash B dash is the height of image अपॉन में O dash B dash, या इसको हम E B dash भी लिख सकते हैं। So E B dash is the distance between the optical center of eyepiece lens and the final image, और final image the object, जो object है और optical center है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने लिख दिया ई बी डैश। इसको वी विल लीव इट एज इट इज फॉर नाउ। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टेन अल्फा एंड टेन बीटा इन दिस एक्सप्रेशन, दैट इज एम इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, इसमें अगर हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? वी विल गेट m इज इक्वल टू टेन बीटा की जगह टेन बीटा की वैल्यू दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन में ई बी डैश अपॉन में टेन अल्फा की जगह टेन अल्फा की वैल्यू दैट इज ए बी अपॉन माइनस डी, राइट? सो वी हैव जस्ट पुटेड द वैल्यूज ऑफ टेन बीटा एंड टेन अल्फा इन द एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? ए डैश बी डैश अपॉन AB into minus D upon EB dash, right? Now students, in triangle AOB and A dash OB dash, right? अगर हम देखें ट्राइंगल AOB और A dash OB dash को, तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं बिकॉज दोनों में एक एंगल कॉमन दैट इज 90 डिग्री। आप सिंपली ज्योमेट्री अप्लाई करके दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और सिंस वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दैट इज ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश OB डैश। सो हमको पता है कि उन दोनों की साइड्स का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा? A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू OB डैश अपॉन OB, राइट? तो यहां से अगर हम A डैश B डैश की जगह इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? M इज इक्वल टू OB डैश अपॉन OB इंटू माइनस D अपॉन EB डैश। सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? OB डैश। OB डैश का मतलब क्या? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी। तो फर्स्ट के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी हो गई VO, राइट? देन OB मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई UO, माइनस D तो हमारे पास है ही सही, और EB डैश मतलब आईपीस से B डैश तक की जो दूरी है वो हो गई UE।
this should be positive. OB and EB dash should both should be negative because we are moving toward the left, right? So on putting all these values in this expression, what do we get from here? M is equal to OB dash की जगह OB dash की value, OB की जगह minus UO into minus D upon में EB dash की जगह minus UE, right? Now minus से minus cancel, so what do we get from here? M is equal to minus VO upon UO D upon UE. This is the expression for magnifying power of a compound microscope, right? Compound microscope का जो magnifying power होता है उसके लिए this is the expression. Now today we have learnt about the simple microscope, right? And compound microscope का magnifying power. दिस इज नॉट द होल डेरिवेशन. इसके बाद हमको दो केसेस और पढ़ने हैं जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे. फर्स्ट वन इज व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड द सेकेंड वन इज व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन आया है. इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अदर टू केसेस. The first one is when the image is at least distance of distinct vision and the second one is when the image is formed at infinity. So that's all for today's class, students. You have to practice the whole derivation by your own so that it will be easier for you to analyze the small faults in the derivation. Okay. Thank you all.